Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. मेरा नाम तलहा है and a lot of the times you don't see me because I'm on the back side of the camera and this is one of those episodes जो अगर आपने last season भी देखा हो and if you're following us from then कि हम आखिरी episode जो हमारा हर season का होता है the closing is always a reflective episode where we reflect on the 21 people or so people that we have met throughout our journey और कुछ awkward सा होता है क्योंकि कमिंग फ्रॉम बैक ऑफ द कैमरा टू द फ्रंट ऑफ द कैमरा इज़ वेरी हार्ड और मैं हर एपिसोड में मेरा ये होता है कि मैं इस नज़र से सुन रहा होता हूँ कि ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड एंड व्हेन आई लर्न देम I want to ask you guys and I want to check in with Miss Sara कि okay what have we collectively learned क्योंकि बहुत अरसे तक हम ये बातें देखते हैं कि बातें सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं सो देयर फॉर्मूला सबका एक ही होता है मंजिल सबकी एक ही होती है लेकिन द वे दैट देयर अप्रोच इज द वे दैट देयर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन इज डिफरेंट एंड दैट इज द पार्ट दैट इंटरेस्ट अस कि हम लोग देखें यार कि अच्छा वी सीन अ कॉमन थिंग बिटवीन एजुकेटर्स के देयर नीड्स टू बी अ रिफॉर्म इन एजुकेशन इन इंस्टीट्यूट्स and every educator has their own thinking around it कि this is what they should do this is what they should do but collectively सबकी एक ही thought है कि यार इसकी reform तो होना है अब वो कैसे होना है let's talk about that let's put that on the table let's have a conversation around that and one of the few things that we do and try to do is we try to not just have a conversation about the problem we also try to find a solution to it and we try to come up with some sort of way that we can take an action on it that's very important to us वरना गुफ्तगू तो ड्राइंग रूम में भी होती रहती है but there's no evident plan of action around it so this is what we try to do and this is one thing that we'll talk about while we're ending the whole season inshallah तो जी क्या हाल है आपके Alhamdulillah, I'm great. how has everything been we've seen a lot of things हमने स्टूडियो भी बदला है हमने अपनी इस बार हमने इस सीजन में we've recorded 4 episodes in a day how's that been for you वो दिन जिस दफा हमने एक ही दिन में 4 लोगों से मुलाकातें की वो बहुत ही भरपूर दिन था क्योंकि मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले 4 लोगों के साथ एक दिन में yes it was a lot to digest and process in one day लेकिन believe me जो कहते हैं ना सोहबत या किसी बड़े आदमी के साथ बैठने में जो सीखने को मिलता है वो उसका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है कोई नेमोल बदल नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रोडक्टिव वो तमाम दिन रहे हैं जब हमने 2-3 रिकॉर्डिंग्स या उससे ज्यादा रिकॉर्डिंग्स एक साथ की थी मुझे याद है कि हमने एक दिन रिकॉर्डिंग करी थी वेयर वी हैड डॉक्टर अमरीन हसीब यस एंड उसी वक्त डॉक्टर अमरीन हसीब का थोड़ा सा डिले हो गया था तो हमने लेट शुरू किया एंड उमर भाई फ्रॉम ऑरेंज ट्री ऑरेंज फाउंडेशन वो भी उनके पॉडकास्ट के दरमियान आ गए तो ग्रेशियस ऑफ हम कि वो उस थोड़ी देर बैठ गए फिर उन्होंने बैठने के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू भी करी बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर गेस्ट आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स Dr. Amreen Haseeb, yes, she's an educationist, but she's an artist first. she's a poet She's a poet first, and a very well known and a very accomplished one at that. हमारी generation की मतलब she's not only the top female poet, but she's the top poet from our generation. और Umar bhai the he's from a bit of a business background and from a more sturdier or educational background तो दोनों का मिलना कि यार हमने आपके बारे में सुना भी नहीं है but you're doing very good things
और मजे की So, बात कि डॉक्टर अमरीन के साथ जब हमारा रिकॉर्डिंग सेशन खत्म हो गया, तो मुझे लगा कि वो शायद अपनी गाड़ी का वेट कर रही हैं, बट फिर उन्होंने हमें बाद में बताया कि वो कसदन यहाँ पे रुकी और उनको ये कॉन्वर्सेशन जो उमर भाई के साथ हुई थी वो इतनी अच्छी लगी और इतनी वो महजूज हुई और उनको कहनी मुझे बहुत क्लिक किया, उन्होंने रेजोनेट किया उस कॉन्वर्सेशन के साथ, तो वो बैठ के उन्होंने पूरा सुना। so one of the things मैंने overall फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा जो सीखी है ना, हम्म। और जो मैंने ऑब्जर्व करी है, एंड ऑब्जर्व एज इन ऑब्जर्विंग हम्म। नॉट जस्ट लिसनिंग, वो ये है कि a lot of these people जो माशाल्लाह अपनी जिंदगियों में सारी चीज़ें accomplished, डॉक्टर अमीन, वी हैव रिजवान भाई, वी हैव a lot of other doctors जो हमारे पास आए, सबने माशाल्लाह सारी इतनी सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करी हैं। और उनकी अकॉम्प्लिशमेंट की मैंने एक चीज़ नोटिस करी, सब में जो कॉमन थी, इज देर ऑलवेज विलिंग टू लर्न, नो हम्म। मैटर हु इट इज़ फ्रॉम। सही है। हम्म। तो उन्होंने बोला नहीं, आप मेरी फील्ड की नहीं है तो मैं आपसे सीख नहीं सकती या सीख नहीं सकता, के बजाय उन्होंने बोला अच्छा आप बताएं तो, हम्म। मे बी आई एम रॉन्ग। ये तो बड़े लोगों की निशानी होती है, हाँ, बिल्कुल। they are always willing to learn, they are always looking for places के कहीं से हमें लगता है यार यहाँ से क्या सीखेगा बंदा, वो लोग वहां से भी कुछ लेसन या कुछ चीज निकाल लेते हैं। हम्म। अ, तो एक ये चीज है। तो आई इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं मुझे लगता है एक अपने सवालात और जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं जो डिस्कस करेंगे हम, हम्म। ताकि एवरीथिंग बिकम्स प्रोडक्टिव, इज कि आई थिंक the entirety of these 21 people that we met, we've seen three things that are common. हम्म। एक तो, of course, we've had a lot of people from educational backgrounds, educationists, teachers, professors, PhDs. So the main point has always been that we need a reform in our educational institutes. कि भले they be on a spectrum of is degree right or degree wrong, but everyone इज ऑफ दिस मैटर के जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो सही नहीं है, हम्म। जो एटलीस्ट अभी पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस में। सेकेंड थिंग, वी जाहिर सी बात है हमारे जितने भी गेस्ट आए, हम कोशिश करते हैं कि दे होल्ड, दे आर ऑफ अ सर्टेन एज, विद बिकॉज ऑफ दैट एज देयर कम्स मैच्योरिटी एंड देयर कम्स एक्सपीरियंस। तो सबसे हमने पेरेंटिंग के बारे में भी सीखा, and one of the things that we learned around is कि there's a lot of over cuddling, over protection of kids these days. हम्म। जब that's how everyone's becoming very soft, as you हम्म। might say. हम्म। um, और तीसरी चीज मुझे लगता है, हमने जब काम सबसे पूछा उनके काम के बारे में, नो मैटर किसी का जो भी बिलीफ हो ना, वी मैंने ये नोटिस किया कि एवरी वन हैज टाइड देयर वर्क एंड देयर फेथ टुगेदर, हम्म। कि भाई अगर हम ये करेंगे आप रिलीजियसली या अपने फेथ के हिसाब से, तो हमारे काम में तो बरकत आएगी, हम्म। हमारे काम में हम्म। तो इफेक्ट होगा। एंड अक्रॉस द बोर्ड, भले देयर माइट बी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन रिलीजन, बट सबका मेंटेन, मैंने ये चीज सीखी है कि इन सबके पास ये है कि यार कुछ नहीं, आर बिलीव्स आर टाइड टू आवर वर्क, our ethics, our morality is tied to our work. हम्म। They're not different things. एंड यस, एंड एक और चीज के, देयर आर नो शॉर्टकट्स। जितने गेस्ट्स आए इस सीजन के भी और जो सीजन वन के भी हमारे गेस्ट थे, सभी की यही राय थी, मुत्तफिक मुत्तफिक राय, कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो लोग शॉर्टकट्स के पीछे दौड़ा रहे हैं, ये एक बहुत आउट एंड लाउड मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो शॉर्टकट्स के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट। आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और जो हाईलाइट हुई इन तमाम डिस्कशंस में जो लोगों के साथ रही, कि हम समहाउ अपने बच्चों को, या हमारे बच्चे समहाउ इस डायरेक्शन में रागिब हो गए कि दे वांट टू बी entertained एट ऑल टाइम। चाहे वो लोग एजुकेशन का बैकग्राउंड लेके आए हों या किसी फील्ड से आए हों, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हों, सब ने एक इस बात का इंदिया दिया कि हाँ, इस वक्त माशरे में entertainment is something which is
लोग समझते हैं कि वी आर एंटाइटल्ड फॉर सर्टेन थिंग्स, जहाँ फन होगा, मजा होगा। ये बात पता नहीं क्यों हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है कि मजा जो है वो जरूरत है। इसके ऊपर मुझे काफ़ी सोचने का मौका मिला, और इस पे मैं सलमान सिद्दीकी साहब को बहुत गौर से मैंने इनको सुना, उनकी पुरानी तमाम जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके नोट्स भी देखे निकाल कर, फिर उनकी वीडियोस जो वो अपलोड कर रहे होते हैं उनको भी देखा। तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट हैज़ गॉन बैड इन आवर सोसाइटी, कि बच्चों को ये फीलिंग कि इंटाइटलमेंट का एहसास कि हाँ, ये तो हमारा हक है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हाँ, हमें मज़ा चाहिए, हमें फलानी चीज़ चाहिए। तो फ़र्क जो है नीड एंड वांट का, वो समहाउ उसकी फाइन लाइन जो है वो ख़त्म हो गई कि क्या हमारी ज़रूरतें हैं और क्या हमारी ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात हर वक्त हर जगह मयसर नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। ज़रूरत तो बहरहाल चंद ख़ास ज़रूरतें होती हैं, उनका पूरा होना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी लर्निंग थी जिसको मुझे लगा कि इस पे बात करने की मज़ीद ज़रूरत है। इंशाल्लाह सीज़न 3 में हम कोशिश करेंगे कि इस बात को मज़ीद एड्रेस किया जाए, इसको खोला जाए और इसके हल की तरफ बढ़ा जाए। मैं अब एक काम करूँगा कि मेरा ये बहुत अच्छा होगा कि अगर I've got two highlights that I actually learned, and I not just learned but I wrote them down. हुँ, कि यार अपने अगर कभी भी मुझे अब होता है ना कि आई लुक एट दोज थिंग्स एंड ओके आई गो बैक टू हुँ, दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स, और अगर आपके पास कुछ ऐसी हाइलाइट्स हो, यू नो, ओके दिस इज समथिंग दैट आई लव्ड, जो a learning or an observation that I really liked, हुँ। so I'll share one, फिर आप फिर go back and हाँ, forth. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So one of the things, अभी जब से बिल्कुल आखिर वालों में, and I keep going back to Dr. Amreen because I really loved, I personally really found that podcast to be very soothing and calming and all, हुँ, also because of her voice and the way हुँ, she speaks and her poetry. तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात करी थी, कि उन्होंने बोला अगर आप, और when this was the discussion about parents and बच्चे, और जो और वो गालिबन आपसे गुफ्तगू ये करी थी कि बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन देते हैं, हुँ, ये बात आई थी सामने कि जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि अपने बच्चे के बारे में कोई 3 या 4 अच्छी बातें बताएं, हुँ। आपने बुरी बातें बता दी कि बच्चा ऐसे करता है, ऐसे करता है, एकेडमिक ऐसे करता वीकनेसेस है, बताना एकेडमिक शुरू हो वीकनेस जाते हैं बता लोग, दी, हाँ। नॉर्मल एवरीडे वीकनेसेस बता दी, भुलक्कड़ है, जो भी है हुँ, सब है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही थी कि जब आप अपने बच्चे के उनसे पूछो कि अपने बच्चे के बारे में 3 या 5 बातें अच्छी बताएं, तो वो थोड़ा सा उनके पास होता ही नहीं है कुछ बताने के लिए। बताने के लिए दे गेट ब्लैंक। तो दैट वाज वन थिंग दैट आई लर्नड, मतलब जाहिर सी बात है, आई probably going to have kids, I don't have kids right now but that is one thing overall, मैंने ऐसे इम्प्लीमेंट करी कि आई हैव एन ऑफिस, मेरे पास 15 से 20 लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट इज वन थिंग कि अगर मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ यार कि चलो इसके अंदर ये शायद बुरी बुराई है, उसको इम्प्रूव, या इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हुँ, तो वो तो है, हुँ। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है उसको भी तो अप्रिशिएट करे बंदा। हाँ, बहुत क्रूशियल बात है ये। सलमान साहब कहते हैं इसमें, आई कोट माय टीचर अगेन, ट्रीट योर किड्स एज़ यू वांट देम टू बी, नॉट एज़ दे आर। उनको उस तरह से देखें जिस तरह आप उनको देखना चाहते हैं, ना कि वो जैसे नज़र आते हैं। और हम सभी वालिदैन से ये अक्सर गलती हो जाती है कि हम अपने बच्चों की उन चीज़ों को सामने लाते हैं, बार-बार ज़िक्र करते हैं, उस पे फ़िक्र करते हैं और उस पे परेशान होते हैं कि इसको तो ये नहीं आता, ये तो ये भी नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही गैर ज़िम्मेदार है और ये तो पढ़ाई की तरफ देखता ही नहीं है या देखती ही नहीं है। भाई वो जो कर रहा है उस पे गौर कीजिए। दूसरी चीज, आप उसको जिम्मेदार देखना चाहते हैं, ख्वाहिश है, उसको जिम्मेदारी दीजिए, वो आपको जिम्मेदार बन के दिखाएगा। आप उसको पढ़ाई में आगे देखना चाहते हैं, उसका जिक्र कीजिए, पॉजिटिव अटेंशन दीजिए, नेगेटिव नहीं। हमने, इफ यू गो बैक टू आवर सेकंड एपिसोड जिसमें हारिस भाई की पूरी बातचीत मुझे इसी पे थी कि people and kids can learn a lot of from fear, हाँ, hurt हाँ, and failure. हम्म,
और आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड हमने जितने भी लोगों से बात की सबका यही कंसेंसस है कि स्टॉप कॉडलिंग योर चाइल्ड हाँ। एंड आई थिंक लेट योर चाइल्ड फेल एंड लेट योर चाइल्ड फील मे बी फियर एंड दे लर्न फ्रॉम दैट। अच्छा, इसमें बड़े मजे की बात हुई तलहा, बहुत सारे लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर गए जब हमने ये बात की कि बच्चों को कॉडल नहीं करें, उनको क्वेश्चन नहीं दें, उनको प्रोटेक्ट नहीं करें। तो लोग जरा खफा हो गए इस बात को सुन के कि क्यों ना करें हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट, हम तो अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, प्रोटेक्शन हमारे हाथ में है ही नहीं। प्रोटेक्शन तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है। हम हाफिज नहीं है, हाफिज तो हमारा रब है। हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, हम उसको गलत और सही बता सकते हैं। और अगर हम उसकी हर फॉल पर मौजूद होंगे, अरे मेरा बच्चा गिर गया, अरे मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, तो मेरा बच्चा चलना कैसे सीखेगा? हम सारी जिंदगी अपने बच्चों के साथ नहीं रहने वाले। जैसे अब हमारे माँ बाप, मेरे वालदेन इस वक्त मौजूद नहीं है, मुझे बहुत सारी जगहों पे गाइड करने के लिए मुझे अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं ना। तो वो एबिलिटी टू डिसाइड कैसे पैदा होगी अगर मैं उसके लिए सारे डिसीजन लेना शुरू कर दूं। हाँ, वो कुछ गलत डिसीजन लेगा या लेगी तो उसका उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। और हम उसको बताएं कि हाँ बेटे ये इस वजह से हुआ, हम गाइड करें, हम गाइड करते रहें मुसलसल। लेकिन प्रोटेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। प्रोटेक्ट करने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और वो हमारा हमें भी और हमारे बच्चों को भी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो इसमें मुझे लगा कि मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत है। बल्कि मैं बहुत ही रीसेंट एक इंसिडेंट है, मैं उसको इससे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करूँगी कि अक्सर दफ़ा ये होता है कि बच्चे अगर गली में जैसे खेल रहे हैं अपने कंपाउंड में, और वहाँ हो गई किसी से लड़ाई, और उन्होंने आके कहा मैं ग्राउंड नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, और मैं वहाँ बच्चे ऐसे हैं उन्होंने ये कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें ये हुआ, चलो मैं चल के देखती हूँ या मैं देखता हूँ। वालदेन फौरन कूद पड़े उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। ये कॉन्फ्लिक्ट बच्चे को खुद रिजॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे मुझे डील करना है अगर कोई मुझसे डिसएग्री कर रहा है, अगर कोई मुझसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कोई मुझसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है किसी बात के ऊपर। आए, उस बच्चे को हमें इक्विप करना है कि वो अपने झगड़े खुद सुलझा सके। सिमिलरली, स्कूल्स में अगर कोई इशू आ रहा है किसी भी किस्म का, टीचर के साथ, किसी फेलो स्टूडेंट के साथ, कहीं पर भी, टेल द चाइल्ड टू गो एंड टॉक टू देयर टीचर और whoever is responsible in the school, इंस्टेड के वालदेन खुद पहुंचे हुए हों अपने बच्चे का केस लड़ने के लिए। और उसके दो नुकसान आते हैं, एक तो ये कि बच्चे को अपनी बात खुद कहना नहीं आएगी, दूसरा बच्चे की नजर में इदारा या उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और बच्चे को ये याद रहेगा, अच्छा मेरे वालदेन को ना इस इंसिडेंट के ऊपर बड़ा गुस्सा आया था, दे कैन देन यूज दैट एज अ ट्रिगर फॉर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन और इंसिडेंट। ये बहुत अहम चीज है जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बच्चे बड़े होंगे, जाहिर कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ना जिंदगी में, लोगों के साथ तो रहना है। ऑफिस प्लेस पे आ सकते हैं, कहीं बिजनेस में पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, शादीशुदा जिंदगियों में भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे आते हैं, लाजमी आते हैं। तो वहाँ इंटरेक्शन जब तक रहेगा लोगों से, कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे भाई। तो वो लड़ाइयाँ तो, और वो रिजोल्यूशन की तरफ जो काम करना है कॉन्फ्लिक्ट को, वो तो बच्चे को खुद करना है ना। हम क्या वहाँ यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे? फिर हम उसके शादी होने के बाद उसके घरों में भी जाएंगे उनके मसले सुलझाने के लिए? तो ये जरा सोचने की बात है, और इस पे मेरा ख्याल है हम आगे लोगों को जरूर इनवाइट करें और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज लें इसके ऊपर कि हाउ डू वी एड्रेस दिस। इट्स जस्ट नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड from danger or from anything which is bad in the society. It is also about enabling and equipping our children कि जिंदगी हर दफा हर वक्त हमारी मर्जी के मुताबिक हमें तजुर्बात में नहीं डालेगी। हमारी मर्जी के बरक्स भी चीजें होंगी, हमारी मर्जी के खिलाफ भी होंगी, और लोग भी हमें जरूरी नहीं है कि हर दफा यही मिले। तो गलत लोगों से कैसे डील करना है, ये उसको सीखना पड़ेगा, और हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? असल में people don't understand that there can be two rights to something. हम्म। You can be right and I can be right.
हम्म इट डज नॉट मीन कि अगर आप सही हैं तो मैं गलत हूँ. हम्म दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर एक देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. हम्म मुझे याद है सबीना खत्री आप आई थी एंड उन्होंने यही बात करी थी कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है. सबसे बड़ा मसला कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर एंड उन्होंने यही बात करी थी कि everyone wants peace. हम्म The way that we have peace is okay. कि they can be two separate ideologies. हम्म They can be two separate. जो मुझे याद है कि क्या कहते हैं, मेरे अब्बा मुझे बताते थे कि और मैंने लोगों से अपने टीचर से सुना भी था कि इफ यू आर मेकिंग बोथ पार्ट ऑल द पीपल हैप्पी हम्म देन यू डूइंग समथिंग रॉन्ग. हम्म You can't make everyone happy नो at all वी कैन times. नॉट uh, and we've seen that with throughout even our journey. मतलब we've had a few guests I won't name who I've highly disagreed with. हाँ लेकिन I've okay respected them because they are at a they've done what they've done. लेकिन I've disagreed with them. एग्री टू डिसएग्री हाँ. मतलब ऐसा हर हर सवाल के देखिए जवाब एट द एंड ऑफ द डे सबका एक ही है. हाँ It's not even the jawab that's different. It's the approach that is different. बिल्कुल My बिल्कुल approach is different. It does बिल्कुल not mean my approach is wrong. हाँ Your approach is different to a हाँ particular solution. It does not mean your approach is हाँ wrong. हाँ मुझे याद है हम लोग हम हमारी स्कूल में टीचर थी हमारी मैथ्स की मिस खान. तो हम वो और सर मदनी होते थे तो हम लोग जब ओ लेवल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे ना तो वी यूज टू राइट डाउन एक सवाल था और अब वो सवाल 3 स्टेप्स में हो सकता है. हम्म लेकिन फॉर एग्जांपल हम किसी ने सॉल्व कर लिया 4 स्टेप्स में क्योंकि उसको 4 स्टेप्स में ज़्यादा आसानी लग रही है हम्म समझने में. तो वो सर मदनी यही बोलते थे कि भाई सॉल्व तो हो गया, हाँ मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन लंबा हो गया, एग्जाम में टाइम चला जाएगा. हाँ वरना उन्होंने ये नहीं बोला कि सवाल गलत है, हाँ या उन्होंने बोला करने का तरीका गलत है. तो दे कैन बी डिफरेंट अप्रोचेस टू एवरीथिंग. सही है. हम्म um, अगेन माय अप्रोच इज डिफरेंट एंड सबीना आपा ने यही बात बड़ी अच्छी मुझे लगी थी कर रहा था कि अप्रोचेस हैव चेंज्ड थ्रू आउट ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम. हाँ अब मेरे अब्बा के ज़माने में शायद टेक्नोलॉजी नहीं थी हम्म तो वो इसलिए शायद स्कूल चल पैदल जाते थे. हम्म भाई मैं पैदल नहीं जाता तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना. या अगर मुझे फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है. हाँ वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स और रेहान अंकल ने भी ये बात करी थी. वी टॉक्ड अबाउट एआई कमिंग इन. हाँ तो इट्स नॉट माय फॉल्ट कि that's coming in हाँ and it's making my approach a bit different हाँ than yours. हाँ Your approach would have been to go to a library, maybe read books, or my approach is different to researching some question or हाँ researching something. And I uh, and uh, there's someone who said this about AI. He said कि AI is not going to replace jobs हाँ of people. हाँ It's only going to replace the jobs of people who do not know how to use AI. हाँ So if you are a good prompt writer, if you can articulate, वगैरह, it's not going to take away your job. So your approach has to change. Unfortunately, approach change होने के साथ साथ you also have to change the lens you look at हाँ the जरूरी solution from. जरूरी Um, that was one thing. कि there can be two rights to something. There can be two different approaches to the same बिल्कुल question. And none approach is wrong. हाँ आपकी भी सही है, मेरी भी सही है. We're gonna end up in the same place. इसके लिए टॉलरेंस और पेशेंस चाहिए ना वो भी एक चीज है कि जिसके ऊपर हमें थोड़ा और डिस्कशन करने की जरूरत है कि व्हाई इज इट दैट पीपल आर बिकमिंग लेस टॉलरेंट ऑफ न्यू आइडियाज. ये बात आज से 20 25 30 साल पहले हम कह सकते थे कि लोग जो हैं बहुत रिजिड हैं अपनी अप्रोचेस में सोच में. लेकिन मुझे कोई आजकल के ज़माने में भी कोई इतना फ़र्क नहीं महसूस होता. लोग अभी भी बहुत रिजिडिटी के साथ चेंज को देखते हैं. जैसे डॉक्टर अहमद ने ये बात की कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी. अब प्रैक्टिस छोड़ के ही वेंट फुल टाइम वर्किंग फॉर इंडस हॉस्पिटल. और लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, उनके पेशेंट्स ने उनको बहुत कुछ कहा. और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे यही करना है. रातों को देर देर से आए, अपने आप को खूब उन्होंने इस काम में इंगेज किया. और अल्हम्दुलिल्लाह
उनका नफ्स भी इस बात से क्लियर है और सुकून है उनको कि उन्होंने जो कुछ किया इस वतन के उन लोगों के लिए किया जिनके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। गोइंग बैक टू डॉक्टर शायान शादमानी, उन्होंने तो ये तक कहा कि मैंने अपना पासपोर्ट आज तक नहीं बनवाया। और पीओबी पाकिस्तान का इस वक्त एक ऐसा इदारा है जहां पर एवरी संडे उनका कैंप लगता है और वो हजारों की तादाद में लोगों के वहां पे, मतलब कंसल्टेंट्स जिनको आम जगहों पर 5-5 हज़ार रुपए देकर लोग दिखाते हैं हॉस्पिटल्स में, वो वहाँ कंसल्टेंट्स ऑपरेशंस करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, इन सिंध, इन कराची, और ऑल ओवर पाकिस्तान लोग आके उनसे इलाज करा रहे हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल पीओबी, आपको इतना अच्छा सेटअप शायद ही कहीं और मिल पाए। इसी तरह हुमायूं भाई ने भी ये बात की कि उन्होंने हमेशा अपनी सोच में जो पहलू सामने रखा वो अल्लाह की मर्जी और हक बात। लोगों ने उनको सिंपल कहा कि बहुत सिंपल है, हाँ बहुत ये हैं, मगर ही वॉज वेरी क्लियर कि वो सच बात कहेंगे और किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। और उनके काम अल्हम्दुलिल्लाह होते चले गए और अल्लाह ने उनके लिए आसानियां पैदा की। यही बात सैयद मिसबा अहमद जैदी साहब ने भी की कि जीरो मीटर स्टार्ट किया, अपनी जान लगाई अपने बिजनेस के अंदर। आइडियाज उस जमाने में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उनके पास आई जब मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। अब तो बहुत फर्म्स खुल गई हैं मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, अल्लाह जाने क्या क्या हो रहा है। उस जमाने में जब ये सब कुछ नहीं था, उन्होंने अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे ये काम किया, नियत साफ रखी, चीज अच्छी बना के दी लोगों को, और पूरी मेहनत और खुलूस से दिल से काम किया और अल्लाह ने उनको उसका रिवॉर्ड दिया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोनों चीजें जो हैं वो हमारी आके एंड होती हैं बात नियत के ऊपर। और अल्लाह भी कहता है कि नियत तो अगर हमारी साफ है तो बेशक मकामात सख्त आएंगे रास्ते में, लेकिन इंशाल्लाह आसानियां भी अल्लाह मियाँ पैदा करने वाला है। तो ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई आई टेक अवे था मेरे लिए, और ये थॉट प्रोवोकिंग भी थी कि बल्कि इस इदारे में भी मुझे ये महसूस होता है तला कि इस इदारे को हमने पुरखुलूस और बहुत ही नेक नियत के साथ स्टार्ट किया। और मुश्किलें आ रही हैं, रोजाना आती हैं, आई थिंक लेकिन हल भी मिल जाते हैं। एक और चीज़ है कि जब डॉक्टर शायान और डॉक्टर एमएल वगैरह जैसे लोग हमारे पास पॉडकास्ट पे आए, मैं इनसे मिला, इनकी बात सुनी, तो एक बहुत, और जब मैं फिर एट द एंड यू हैव टू go with this same feeling and then you have to live your daily life and वो आपके बात जहन में चल रही होती है। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन चेंज हुई। अनफॉर्चुनेटली जो आपने बात करी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले, इतने सारे ज़्यादा लोग हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग जो प्रेफर करते हैं वो कम लोग हैं। जैसे डॉक्टर एमर, डॉक्टर शयान जैसे कम लोग हैं। अ, वो लोग ज़्यादा हैं जो लोग बोलते हैं भाई ये कमा लो, ऐसे कमा लो, फलानी चीज़ कर लो। तो I don't know why I started observing and I started seeing people who like to earn because they don't have they either they haven't found this uh, sense of purpose or they've lost their sense of purpose uh, किसी ना किसी वजह से। तो they look for them people like डॉक्टर शयान एंड डॉक्टर अमर के, यार हमारे पास तो पर्पस नहीं मिल रहा, हमें हमारे पास तो पर्पस नहीं है, एक काम करो, यू टेक अ फाइनेंस, यू हैव यू हाँ लेट हाँ अस जॉइन हाँ योर पर्पस। हाँ, जैसे उमर भाई ने भी ये हाँ बात की कि उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जॉब एक तरफ रख के और ये डिसाइड किया कि मैं ये लाइन चूज करूंगा जहाँ पे आई एम गोना हेल्प, प्रोवाइड हेल्प तो टू दोज। somewhere where डॉक्टर शयान एंड डॉक्टर अहमद डेडिकेटेड देयर लाइफ टू द पर्पस, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे से जितना भी अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट इन सारी चीजें थी वो भी आ गई। हम्म। मतलब इफ यू इवन मतलब वी ट्राइड गेटिंग डॉक्टर बारी, हाँ स्केड्यूल भी मैं हाँ, ट्राई नहीं हो किया है सके, डॉक्टर बारी इंशाल्लाह का सीजन 3 में बुलाएंगे। इंशाल्लाह। लेकिन we've had all a lot of his acquaintances, हम्म। people who actually helped him build this. यस। And one of the things we जब हमने सबकी स्टोरी सुनी, मैं ये सुनी कि यार at the end Indus Hospital is not like a small charity hospital. हम्म। It's a huge network of hospitals. It's a big thing. Or to run a machine like that, you need money. So money is coming in from somewhere. तो we ये जो आपकी बात थी कि they found their purpose, and when they found their purpose, money came walking to them. बिल्कुल।
सही है, क्योंकि people who didn't have purpose wanted to get attached to their purpose. Purpose is important. The crux of all this is कि हमें जो पर्पस तलाश करना है जिंदगी में, सूरह हुजरात में भी तो बार बार इसी बात का जिक्र होता है कि जिंदगी का मकसद, मकसदियत जो है उसको तलाश करने में अपनी कोशिशें जारी रखो। एक कहानी है, मुझे याद है ये, काशिफ अंकल ने वो बड़ा कहते हैं कि एक बंदा था जो फिशिंग बोट चलाता था, तो दो लोग उसके पास गए फिशिंग बोट पे, उन्होंने पूरा शहर करी, सब कुछ करा, पूरा दिन गुजारा, तो उनसे मछेरे से दिन में बोला, भाई तुम्हारे पास तुम कितने घंटे किश्ती चलाते हो? उसने बोला 6 घंटे। बोला अच्छा, तुम 8 घंटे क्यों चलाते? बोले मैं 8 घंटे चलाऊंगा तो क्या करो, क्या होगा? बोले तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा चला दूंगा, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तुम्हारी ज़रूरत से, तो तुम फिर दूसरी किश्ती लेना, तुम एक और बंदे को रखना, फिर तुम्हारे उस किश्ती के पैसे भी आएंगे, फिर उससे तीसरी किश्ती लेना, फिर ऐसे ऐसे करके तुम्हारे 50 किश्तियाँ आ जाएंगी। अच्छा, मचेरा बोलता है अच्छा उसके बाद क्या होगा? बोला फिर तुम अपनी सुकून से जिंदगी जी देना। तो वो मचेरा बोले मैं अभी भी क्या तो कर रहा सुकून हूँ? से हो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? So there's one thing कि yes, standard of living and quality of living, people haven't defined it yet, and people haven't defined a lot of things. Um, things like small things like success. What is success? Everyone has a different definition. And आजकल के ज़माने में where people in the West and everyone saying explore your truth or no. हाँ, So we were finding a way that some things are subjective. जब तक subjectivity नहीं आती ना, you can never look at something objectively. You can never look at something objectively. वो फिर सारी चीजें fluid हो जाती हैं कि आप जो कह रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ, फिर सारे philosopher बन जाते हैं, and no one is right, no one is wrong, and it destroys everything. Coming to one question that I daily had from you, it's some sort of उस इस recording के दौरान I had a few projects going on, and during one of those projects we also had this one guy Kifayat yes, Shahzad on board, and he talked about uh, having open dialogues in universities and school, having और बहुत सारे लोगों ने हमें यही कहा कि openness and open dialogues is or is the only way to solve conflicts. अगर आपने दिल में बात रखी, मैं अपने दिल में बात दूंगा, तो conflict कभी रिजॉल्व नहीं होगा। तो during this these recordings, there was a certain project that was happening in my personal life where because I'm from Islamic background, Islamic teacher, Islamic scholar boy. तो हमारे एक टीचर थे मोहम्मद हिजाब. He is from the UK. He travels the world. He debates on atheism. He debates on Christianity or whatever. He's not saying कि okay you accept my religion. He's just saying कि okay don't, if you're not, if let us live and you live. He's been a big voice on the Palestine issue. He's been on Piers Morgan a lot of times and everyone. So he decided to do a Pakistan tour. And he coming here, when I talked to him, he was like, yeah, I have good expectations. Because Pakistan is a religious country and everything. But unfortunately, when came here, we scheduled his talks throughout universities because that's where the most impact that we can have. Alhamdulillah, we had, I think, in 11 days, we covered around 50 universities, with giving every university their time. And in बच्चों के जहन में Muhammad Hijab is like a celebrity these days because he's the guy because of his views and because of his views, and because in the UK there's only one particular Oxford graduate and Oxford studied person who's going on all these media channels and defending Palestine and Islam rights. But when he comes here, तो हमने उनकी दो universities as such ऐसी थी where सुबह talk है, रात को email आती है कि unfortunately we have to back off. Reason पूछा तो they forwarded us a 50 pager that some student had written कि because of his views he doesn't like falana bande, he does not, and it's anti of LGBTQ rhetoric and everything. So we were like, I threatened when you invited when you invited. really. This is Karachi and this is Lahore-based universities.
and I won't take the name of the हाँ university, but a lot of people will know what university that is. हाँ So very liberal university, हाँ and we got email that schools our kids feel threatened, and okay, we were like it's your right, it's your it's a private institute, आपकी आपकी जगह है, आपकी मर्जी. लेकिन one thing that we all everyone thought at the back of the mind कि okay, so अगर हम ये कहते हैं कि if I don't like someone, I won't listen to them, हम्म or if I first of all, there's no I can't threaten you with the way that I speak, हम्म because I'm not using force or anything. लेकिन if you comply with everything your kids say, तो यूनिवर्सिटी में तो बच्चे opposing views देखने आते हैं, opposing चीजें देखने आते हैं. um, Even when I was considering going to university, आगे पढ़ाई के लिए, तो I wasn't going there to study के degree फलाना नहीं. हम्म I was going there because एक माहौल होता है, uh, there's certain people experiences that you have that you do not want to miss. तो जब रिजवान भाई का पॉडकास्ट हुआ है, he connected के openness and open dialogues solve conflicts, and I related to this story hard. You being having gone to a lot of universities, also with the experience that Dr. Saab shares and हम्म. everything, having been connected with a lot of universities. What's your thought on this? What's going on? कि क्या ऐसी हाँ universities का क्या हल है? देखो इसका कोई एक वन पर्सपेक्टिव आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि देयर इज अ लॉट हैपनिंग राइट नाउ इन सोसाइटल लेवल एज वेल एज जो हमारा एजुकेशन है वहाँ पर भी हम हमेशा से मगरिब की तहजीब से बहुत मरूब रहे हैं वहाँ जो कुछ होता है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं मनोअन लेकिन यहाँ हम एक चीज जो है वो इग्नोर कर जाते हैं समहाउ कि मगरिब इस वक्त खुद परेशान है वहां पर जो एक भूचाल आया हुआ है वहां पर जो कंजर्वेटिव तबका है वो इस चीज को भांप चुका है कि उनकी जो पूरी तहजीब है वो इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन उनका कंजर्वेटिव तबका इस चीज को समझ चुका है एंड दे आर वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजीज कि जिसके साथ वो अपनी तहजीब को अपने आप को बचा सकें ये चीज अभी हमें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हम तो अभी मगरिब की चकाचौंध से हमारी आंखें खीरा हैं हमें ये दिख नहीं रहा है हम इस वक्त तकलीद में हैं हम फॉलो कर रहे हैं इसके रिपरकशंस हमें महसूस होंगे कुछ अरसे के बाद कि हम जिन लोगों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद बेचारे अपनी जड़ों से उखड़े पड़े हैं और अपनी जड़ों को मुरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो बात है ना कि ओपन डायलॉग्स होने बहुत जरूरी है मुज़ाकरा होना बहुत जरूरी है बात होना बहुत जरूरी है लेकिन हम लोग जब ओपिनियनेट हो जाते हैं ना बाज एतकादात पे बाज कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बाज आइडियोलॉजीज के ऊपर और बस उसको एक फर्म एंड फाइनल स्टेटमेंट समझते हैं वहां मसले शुरू होते हैं मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे इसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है मुताला कर कौन रहा है कोई पढ़ता हुआ दिख रहा है हम वो पढ़ते हैं या वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर लेंस से देखते हैं जो हमारे पास होता है इसके लिए तो ज़रूरी है कि अगर हम डायलॉग करने जा रहे हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ रीडिंग्स मौजूद हों हम इक्विप्ड हों मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के साथ वो तो हम कर नहीं रहे हैं एक ट्रेंड बन जाता है जिसको हम अपने साथ इस्तेमाल में ले आते हैं और बस वो एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट विदाउट रियलाइजिंग हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री क्या कह रही है सोशियोलॉजी क्या कह रही है फिलॉसफी क्या कह रही है इसके लिए तो हमें वहाब सूरी साहब को सुनना चाहिए फिलॉसफी हिस्ट्री और फिलॉसफी तो उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता एटलीस्ट मेरे उस्ताद हैं इसलिए मैं तो उनको यही इस तरह से देखती हूँ तो पहले भाई पढ़ तो लो पहले समझ तो लो फिर ये बात कहो फिर जजमेंट्स दो फिर कोई और बात करो कि फलाना जो है वो इस तरह का है फलाना उस तरह का और ये समझो कि मगरिब क्या अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है तो क्यों कर रहा है मगरिब अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है और ये बात कहाँ से पता चलेगी पढ़ने से पता चलेगी क्या हिस्ट्री तो ये तो हम कर नहीं रहे
हम जदीदियत की तरफ जा रहे हैं, तो जदीदियत के साथ तो भैया बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि जिसके लिए हमारी सोसाइटी अभी तैयार नहीं है, क्योंकि हम अभी बीच में हैं। पोस्ट कॉलोनियल होने का नुकसान यही है कि हम अभी उस एरा से ही नहीं निकल पा रहे हैं कि जो अंग्रेज हमें जहां छोड़ के चला गया। तो हम अभी यहाँ बीच में हैं कहीं। और हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि जाहिर है वो ये है ना, मौजूद इंटरनेट वेब्स है ना, तो उसको देख के और ये समझते हैं कि दिस इज इट, दिस इज हाउ ओपन टॉक्स हैपन, दिस इज हाउ ओपन माइंडेडनेस इज, और यही एक फोरम है जिसके ऊपर हम उन लोगों को सुनेंगे और इन लोगों को नहीं सुनेंगे, और ये टॉपिक्स पे बात करेंगे, और ये टॉपिक पे हमें बात क्यों नहीं करने दी जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने मुताले को वसी करने की ज़रूरत है। हमें उन लोगों से मिल के बैठने की और उन लोगों को सुनने की ज़रूरत है जो कि इस सब्जेक्ट पे उबूर रखते हैं, जिनको अच्छे से इंफॉर्मेशन है। उसके लिए उस्ताद मौजूद हैं, स्टडी सर्कल्स हो रहे हैं, डिस्कशन ग्रुप्स हैं इस वक्त कराची में, उन लोगों से कनेक्ट करें पहले। दिस इज़ आई थिंक कि हम फिर कुछ सेंस मेक कर पाएंगे। There's this quote that everyone says now, कि hard times make strong men make good times make weak men. वो तो है अपनी जगह बिल्कुल। अब हम क्या तैयार हैं उस चक्की में पिसने के लिए जिसको हम हार्ड टाइम कहते हैं? पहले तो हम अपने आप से ये सवाल पूछे ना कि हमें हर जगह तो अपना कंफर्ट चाहिए भाई, है। हम अपने घरों से अगर स्टार्ट कर लें, फ्रॉम द वेरी पर्सनल एरिया जो हमारा होता है, हमारे घर का, क्या हम वहां थोड़ी देर की भी सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं? हम कभी किसी कॉमन आदमी की जिंदगी के मसाइल को समझने की और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? अपने एरिया के सिर्फ अगर पानी और सीवरेज के ही मसले को हम हल करने बैठ जाएं तो हमें लग पता जाए। अभी डॉक्टर नादिया के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि वो अर्बन प्लानिंग और इस तरह जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं या ओवरऑल ग्लोबली जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हुई उन लोगों के लिए काम कर रही हैं, और उन्होंने पीएचडी माशाल्लाह इसी सब्जेक्ट में किया है कि इसके लिए कितनी प्लानिंग रिक्वायर्ड है। उन्होंने डॉक्सियाडस को पढ़ा, जिसने कि हमारे कोरंगी के एरिया की प्लानिंग की है, जहाँ पे कि जो महाजरीन इंडिया से आए थे उनको फर्स्ट सेटलमेंट बना के दी गई थी। उन्होंने ग्रीक सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा और वो रिसर्च अभी भी कर रही हैं। और उन्होंने ये बताया, और उनकी मतलब ये सिर्फ उनकी पीएचडी का रिसर्च था जहाँ पे वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि प्लानिंग किस तरह की जाती है, कैसे की जाती है, किन पॉइंट्स को सामने रखा जाता है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तो उसके लिए किस तरह से सेटलमेंट की प्लानिंग की जाएगी, अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो उनके लिए क्या सोचा जाएगा, और किस तरह मॉडर्न स्ट्रक्चर को एक खास कम्युनिटी के लिए प्लान किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए ना। उन्होंने कहा मैं जो कुछ कह रही हूँ, ये उनके अल्फाज हैं, कि मैंने बहुत कुछ पढ़ने के बाद ये कहना शुरू किया है। उन्होंने बहुत बहुत अच्छी करामात बातें की, सिंस शी इज लिविंग इन द यूएस। तो वहाँ के जो चैलेंजेस हैं और वहाँ का जो सिस्टम है प्लानिंग का, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि लोग वहाँ पे कैसे काम करते हैं और चैलेंजेस वहाँ पे भी आते हैं, चैलेंजेस यहाँ पे भी आ रहे हैं। इट्स जस्ट दिस दैट वी डोंट नो हाउ टू एंड हु टू अप्रोच। तो पहले रिसर्च तो करें, पहले होमवर्क तो करें, हम पहले क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं। किसी ने कोई अगर अचीवमेंट किया है, आपने जिन उस्ताद का नाम लिया, तो वो कुछ पढ़ लिख कर समझ कर अपने मुताले के साथ अपने रिसर्च के साथ किसी मकाम पे पहुंचे हैं, वो स्ट्रगल के बाद उस जगह पहुंचे हैं। हम उनकी उस पर्टिकुलर लेवल को लेकर और उनके उन पर्टिकुलर व्यूज को लेकर जजमेंटल हो रहे हैं। उनकी उस स्ट्रगल को भी तो समझें, उन तक नहीं तो चलो उनकी कुछ पढ़ी हुई किताबों को हम भी पढ़ लें, तो वी अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज ही सेइंग। तो क्रिटिसिज्म तो बहुत आसान है। हाँ, उसके बैकग्राउंड में जाके उसकी डेप्थ में उतर के उस चीज को समझना और इंटरनलाइज करना और फिर कहना, ये मुश्किल काम है ना। तो मोस्टली पीपल जज। Anything else to add from your side?
I think I want to end this by saying one last thing, where हमने जितने भी इसमें यहाँ पर भी गुफ्तगू करी, and also a lot, if you see any of our previous episodes, one thing that's always been, जैसे मैं हमने शुरू में इस पे point out किया था कि people are always these the people that we've met, the reason they're so accomplished, they are where they are, is because they're always willing to learn. Yeah. So yeah, so and one thing that I've realized during this 2 years that we've been 1 year that we've been doing this is that read everything, explore both sides to everything, and make informed decisions. Don't make uninformed decisions. Having opinions is good. Having uninformed opinions is bad. A lot of people have uninformed opinions these days. That be regarding studies, professional life, personal life, politics, anything. We talked about this. Uninformed opinions are bad. Because if you have an opinion, there should be a back into it. I think that's one last thing that I want to add to this. Great. Jazakallah for having this discussion, and I think हम देख सकते हैं कि हम थर्ड सीजन में बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और स्पेसिफिकली उन चीज़ों पे तो ज़रूर करेंगे जिस पे कि हमें दैट हैज़ टच्ड एटलीस्ट जो मुझे जिन पे टच किया, जिन पेरेंटिंग के कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे बात करनी है, एजुकेशन के कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे हमें बात करनी है. I think if you got, we always gotten feedback. उस feedback को use करते हैं. Of course 1 year, 1 साल पहले जहाँ हम थे, जहाँ हमने सोचा था हम क्या करेंगे, और 1 साल बाद जहाँ पर हम हैं और जो सोच रहे हैं हम क्या करना चाहते हैं, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है. It's all only because we've met the people that we've met along this journey. Yes. We've met a few people where we did, एक तो हम लाइक नहीं है कि हम लोग को हम post करते हैं. They would have given us time, I think. Alhamdulillah, they very gracious of all the guests who came on board. And also, I think उनके साथ बैठ के मुझे एक चीज़ है कि maybe we're thinking a bit too small. And because the problem is so big, the solution has to be as big, if not bigger. एक चीज तुमने कहा, अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी तो वो ये कि after having the discussion with Amna Ahsan and मोहम्मद काजिम, मुझे ये एहसास हुआ है कि किताबें पढ़ी जा रही हैं, किताबें पढ़ने वाले और किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं और बहुत सारे हैं. इट्स जस्ट दैट कि हमने उस तरफ देखा नहीं. तो आमना अहसन जो काम कर रही हैं अदब शनास की बैठक के अंदर, एक सिंपल सी बहुत प्यारी सी लड़की है, बहुत घरेलू सी लड़की है, मगर बहुत बड़ा काम कर रही है इस अदब शनास बैठक के जरिए. मोहम्मद काजिम वेरी यंग इंजीनियर, अ यंग पेरेंट, लेकिन वो जिस तरह से प्रोग्रेसिव और पैशनेट तरीके से किताबों की पढ़ने की बात करते हैं या किताब पढ़ने वालों के ग्रुप में शामिल होते हैं, इससे बहुत तक़वियत हुई, बहुत खुशी हुई और बहुत उम्मीद हुई कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लोग हैं जो किताबें भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं और ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को. तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट था जो कि मुझे इस सीजन में इन दो लोगों से मिलके महसूस हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह. आदाब. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.